لوگ یہ کہتے رہتے ہیں کہ ہم کون سے گناہ کرتے ہیں، ہم میں کوئی گناہ نہیں، ہم کس بات کے لیے توبہ کریں، یا وہی پرانے کام کرتے رہتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے خدا کو بھی فریب دیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بھی فریب میں رکھتے ہیں۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے مقدس پاک نام میں آمین۔ خدا یسوع مسیح کے مقدس پاک کلام میں پاک نام کے وسیلہ سے آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ عزیز بہن بھائیوں، میرے پیارے بیٹیوں بیٹوں، ہم میں ایسے بھی لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح کو مانتے ہیں اور یسوع مسیح میں چلتے ہیں، لیکن چلتے نہیں ہیں۔ وہ اب بھی پرانے ہی کام کرتے ہیں اور پرانی ہی باتوں پر عمل کرتے ہیں، وہی مردہ کام کرتے رہتے ہیں، توبہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، بپتسمہ نہیں لیتے، اپنے اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کرتے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو توبہ کر کے بھی پرانے ہی کام کرتے رہتے ہیں۔ اس بات کے لیے میں آپ سب سے معافی چاہتا ہوں کہ میں سب کی نہیں، کچھ لوگوں کی بات کرتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو وہی پرانے کام کرتے ہیں، ابھی بھی وہ خداوند یسوع مسیح کو مانتے تو ہیں، یہ تو کہتے ہیں کہ ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن کام وہ پرانے ہی کرتے رہتے ہیں۔ آئے ہم کلام مقدس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ خدا کا زندگی بخش پاک کلام ہمیں کیا فرماتا ہے۔ دیکھتے ہیں کلسیوں کے نام مقدس پولس رسول کا خط، اس کا 3 باب 5 تا 11 آیت تک کلام مقدس کی ہم تلاوت کریں گے۔ بس اپنے ان اعضاء کو مردہ کرو جو زمین پر ہیں، یعنی حرام کاری اور ناپاکی اور شہوت اور بڑی خواہش اور لالچ کو، جو بت پرستی کے برابر ہے، کہ انہی کے سبب سے خدا کا غضب نافرمانی کے فرزندوں پر نازل ہوتا ہے۔ اور تم بھی جس وقت ان باتوں میں زندگی گزارتے تھے، اس وقت انہی پر چلتے تھے، لیکن اب تم بھی ان سب کو، یعنی غصہ اور قہر اور بدخواہی اور بدگوئی اور منہ سے گالی بکنا چھوڑ دو، ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولو، کیونکہ تم نے پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار ڈالا اور نئی انسانیت کو پہن لیا ہے، جو معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنے خالق کی صورت پر نئی بنتی جاتی ہے۔ وہاں نہ یونانی رہا، نہ یہودی، نہ ختنہ، نہ نامختونی، نہ ویسچی، نہ سکونتی، نہ غلام، نہ آزاد، صرف مسیح سب کچھ اور سب میں ہے۔ خدا کے زندگی بخش پاک کلام میں جو ہم نے پڑھا، خدا اپنے کلام پر برکت دے۔ عزیزو، یہ کام پرانے ہیں جو اب بھی ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کرتے رہتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم نئی نسل شاہی کائنوں کا فرقہ ہے۔ خدا نے ہمیں اپنے فرزند کہا ہے، ہمیں اپنے بیٹیاں بیٹے کہا ہے، اور پرانی انسانیت کو ختم کر کے ہم نئی انسانیت کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس لیے یہ کام تو اس دنیا کے ہیں، دنیا کی خواہشوں کے مطابق ہیں، بری خواہشیں ہیں۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ بری خواہشیں ختم کرنی چاہیے۔ اسی طرح ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح پاک ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے کہتے رہتے ہیں کہ ہم پاک ہیں، ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں،
अगर ऐसा है तो हम खुदा के कलाम को झूठा ठहराते हैं, खुदावन पर ईमान रखते हैं, पर अगर काम भी यीशु के हुक्मों जैसे करें, तो अगर हम काम पुराने ही करते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा है, तो हम अपने आप को फरेब देते हैं और खुदावन को फरेब देते हैं, और हम में सच्चाई नहीं है। अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें, तो वो हमें गुनाहों के माफ करने और सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदल है। अगर हम खुदा के कलाम को पढ़कर उस पर अमल करें, खुदा के हुक्मों पर अमल करें जो खुदा यीशु मसीह ने हमें दिए हैं, उन पर अमल करें, तो यकीनन ऐसा ही है कि हम खुदा के सच्चे मानने वाले हैं और खुदा को हम फरेब नहीं देते। अगर हम झूठे हैं या ऐसे काम करते हैं, तो फिर जो पुराने हैं, तो फिर हम खुदा को भी और अपने आप को भी झूठे ठहराते हैं। आए हम एक और हवाला जात देखते हैं खुदावन के जिंदगी बख्श पाक कलाम में से, मुकद्दस बुजुर्ग यूहन्ना का पहला आम खत 1 बाब 5 ता 10 आयत तक कि खुदा का कलाम हमें क्या फरमाता है। आए देखते हैं। उससे सुनकर पैगाम हम तुम्हें देते हैं, वो ये है कि खुदा नूर है और उसमें जरा भी तरीकी नहीं। अजीजों, खुदा नूर है, उसमें तरीकी जरा भी नहीं, और हमें भी उसने तरीकी से निकाल कर नूर में रखा हुआ है। अगर हम कहें कि हमारी उसके साथ शराकत है और फिर तरीकी में चले, तो हम झूठे हैं और हक पर अमल नहीं करते। लेकिन अगर हम नूर हैं, नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में है, तो हमारी आपस में शराकत है और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं, तो अपने आप को फरेब देते हैं और हम में सच्चाई नहीं। अगर आप गुनाहों का इकरार करें, तो वो हमारे गुनाहों के माफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदल है। अगर कहें कि हमने गुनाह नहीं किया, तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका कलाम हम में नहीं है। मेरे अजीज बहन भाइयों, बेटियों, बेटों, कुछ लोग ये कहते रहते हैं कि हम कौन से गुनाह करते हैं, हम में कोई गुनाह नहीं, हम किस बात के लिए तौबा करें। जब वो ही पुराने काम करते रहते हैं, तो वो अपने आप को भी और अपने खुदा को भी फरेब देते हैं, वो अपने आप को भी फरेब में रखते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। इसी तरह जैसे मैंने पहले भी कहा है कि कुछ पुराने काम करते हैं, माफ करना, कुछ हम में खुदा के खादम भी ऐसे हैं जो उन पुराने कामों में शामिल होते रहते हैं और ये भी कहते रहते हैं कि हम खुदा के खादम हैं। हम दूर दूर पूरी दुनिया में मुनादी करते रहते हैं और काम पुराने करते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे वाक़यात भी सुने होंगे। आए देखते हैं बुजुर्ग तिमोथियस के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत 3 बाब 5 ता 7 आयत तक हम खुदा के पाक कलाम की तलावत करेंगे। देखेंगे कि खुदा का कलाम हमें क्या फरमाता है। वो दीनदारी की वाजह तो रखेंगे, मगर उसके असर को कबूल ना करेंगे। ऐसों से भी किनारा करना। इन्हीं में से वो लोग हैं
जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन शशोरी औरतों को काबू में कर लेते हैं जो गुनाहों में दबी हुई हैं और तरह तरह की ख्वाहिशों के बस में हमेशा तालीम पाती रहती हैं, मगर हक की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। आए हम सब तौबा करें और मसीह यीशु में शामिल होकर पाक हों। अजीजों, कुछ लोग ऐसे भी हैं, आपने मुख्तलिफ जगह में वाक़यात देखे होंगे, जो तरह तरह के वाक़यात या ऐसे किस्से वाक़यात चलते रहते हैं कि लोगों की बेइज्जती करके वो चले जाते हैं या करते हैं, लेकिन अपने आप को महसूस नहीं करते। वो ये कहते हैं कि दुनिया हमको नहीं देख रही, लेकिन दुनिया देख रही है। वो समझते हैं दुनिया की आंखें बंद हैं, लेकिन दुनिया की आंखें बंद नहीं, उनकी आंखें बंद हैं, क्योंकि उनको गुमराह करने वाले खुदा ने, इस दुनिया का खुदा जो है, उनकी आंखें बंद कर रखी हैं। वो समझते हैं मुझे कुछ नहीं, कोई नहीं देखता, और उनको नहीं देखता, इसलिए वो अपने आप को ये समझते रहते हैं। इसी तरह मेरे अजीज बेटियों, बेटों, बहन, भाइयों, एक हवाला जात और देखते हैं इफ्सियों के नाम खात पौलुस रसूल का, और 4 बाब उसकी 18 आयत है। देखते हैं कि क्या खुदा का कलाम फरमाता है, क्योंकि उनकी अकल तरीक हो गई है और वो उस नादानी के सबब से जो उनमें है और अपने दिलों की सख्ती के बायस खुदा की जिंदगी से खारिज हैं। ऐसे लोग खुदा की जिंदगी से खारिज हैं। ऐसे खादम, ऐसे परस्तार जो अपने आप को परस्तार कहते हैं या खादम समझते हैं, वो खुदा की जिंदगी से खारिज हैं। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। आमीन।